یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ سید مبشر رفائی سے خبریں سنیے۔ پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ سنویدھان ہتھیا دیوس کے موقع پر ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں تقریبات کا انعقاد۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں میں کیا ایمرجنسی سے متعلق نمائش کا افتتاح۔ سماجی و اقتصادی پس منظر کے امتیاز کے بغیر تمام طالب علم معیاری تعلیم تک مساوی رسائی کے حقدار، وزیر تعلیم۔ بھارتی خلاباز شبھانشو شکلا کے ساتھ ایکشیوم 4 مشن امریکہ کے فلوریڈا سے کامیابی کے ساتھ لانچ۔ اور جموں کشمیر میں گرمی کی شدت برقرار، اگلے چند روز تک وادی کی موسمی صورتحال میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج سنویدھان ہتھیا دیوس ہے۔ یہ دن 25 جون 1975 میں سنویدھان کو کچلنے کے واقعات کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اس دن ان سبھی لوگوں کو خراج پیش کیا جاتا ہے جنہیں ایمرجنسی کی وجہ سے زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایمرجنسی کو ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ باب قرار دیا ہے۔ دریں اثنا وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دلی میں آپات کال کے 50 سال تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 1975 میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے کانگریس کی نکتہ چینی کی۔ لاکھوں لوگ جیل میں رہ کر اپنے پریوار کا سب کچھ نشٹ کر کئی لوگوں کے کیریئر سماپت بھی ہو گئے، اور وہ لڑائی نے بھارت کے اندر لوکتنتر کو جیوت رکھا، اور آج ہم دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر بن کر آج وشو کے سامنے سنمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی سنویدھان ہتھیا دیوس کے سلسلے میں کئی پروگرام منعقد کیے گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس سلسلے میں جموں کے کنونشن سینٹر میں 1975 کی ایمرجنسی سے متعلق ایک نمائش کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ ایمرجنسی کے شکار افراد کو یاد کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قوم کی کامیابی اور جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ کام کریں۔ دیش کی آتما کو کچلنے کا ایک پریاس اس سمے ہوا تھا۔ لاکھوں لوگ جیل کی یاتنائیں جھیلے تھے، ناگرک ادھیکاروں پر پرہار ہوا تھا، ناگرکوں کو پراپت سنویدھانک سرکشا کے اپایوں کو ہنن کر دیا گیا تھا، مولک ادھیکاروں پر کٹھاراگھات ہوا تھا، پریس کی آزادی پوری طرح سے سینسرشپ کے مادھیم سے آواز کو دبا دیا گیا تھا۔ میں اس راشٹر کی مہان پرمپرا اور وراثت کو سہجنے والے ان مہان وبھوتیوں کو بھی آج نمن کرنا چاہوں گا جنہوں نے پیڑھی در پیڑھی لوکتانترک مولیوں کو سمردھ بنایا اور بھارت کو لوکتنتر کی جننی کے روپ میں استھاپت کرنے میں اپنا بڑھ چڑھ کر کے یوگدان دیا۔ تقریب کے ایک حصے کے طور ملک کے 3 نئے فوجداری قوانین کے ڈوگری ترجمے کو بھی جاری کیا گیا۔ ادھر سری نگر میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہیڈ کوارٹر پر بھی ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس دوران پردیش بی جے پی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے 1975 کی ایمرجنسی کے تشویشناک اثرات پر روشنی ڈالی۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اشوک کول نے بتایا کہ اس ایمرجنسی کے دوران لاکھوں لوگوں کو جرم بے گناہی کی پاداش میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ آج جو کانگریس کہتی ہے کہ ہم سنویدھان خطرے میں ہے، سنویدھان کو بچانا ہے، تو ان کو یاد کراتے ہیں کہ بھائی تم کیا سنویدھان کو بچاؤ گے؟ تم نے تو 75 میں سنویدھان کی دھجیاں اڑائی تھی، آرٹیکل 38، آرٹیکل 39 تم نے لاگو کیا ہے۔ یہ سب چیزیں جو تم نے لاگو کی ہے، کسی کو گولی سے مر جائے اس کو کورٹ میں جانے کا ادھیکار نہیں تھا، پریس کی سینسرشپ کی ہے، پریس کی لائٹیں کاٹی گئی راتوں رات، یہ تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا۔ اس لیے ہم اس کو سنویدھان ہتیا دیوس کے روپ میں آج جو پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا صبح کہ یہ کوئی کالا دیوس نہیں ہے، یہ تو سنویدھان کی ہتیا کی کانگریس نے اس سمے۔ یہ سب چیزیں ہوئی، یہ یاد کرانے کے لیے لوگوں کو بتانا پڑے گا، لوگوں کو یاد کرنا پڑے گا کہ 1975 میں ہوا کیا تھا۔ ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں آئی تھی، کسی دیش نے حملہ نہیں کیا تھا، انٹرنل کوئی کرائسس نہیں ہوئی تھی، اور یہ ایمرجنسی انہوں نے اس لیے لگائی کہ ان کی اپنی جو سیٹ تھی وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ سماپت ہے، اور 6 سال کے لیے ان کو اویدھ گھوشت کر دیا کہ وہ چناؤ نہیں لڑ سکتی ہے اور وہ ایم پی نہیں بن سکتی ہے۔ اپنی پرائم منسٹرشپ بچانے کے لیے انہوں نے ایمرجنسی لگائی، اس لیے لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابی نے بھی ایمرجنسی کو بھارتی آئین پر ایک حملہ قرار دیتے ہوئے کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے۔ تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ جغرافیائی مقامات یا پھر اقتصادی و سماجی پس منظر کے امتیاز کے بغیر تمام طالب علم معیاری تعلیم تک رسائی کے حقدار ہیں۔ آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران انہوں نے محکمہ اسکولی تعلیم کی کارکردگی کا
तफसीली जायजा लिया। वजीर मौसूफा ने दीगर अमूर के अलावा समग्र शिक्षा, PM पोषण, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और PM श्री का खसूसी जायजा लिया। मीटिंग में महकमे स्कूली तालीम के सेक्रेटरी राम निवास शर्मा, कश्मीर और जम्मू सूबों के नाज़मीन तालीम और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। श्रीनगर में आज अपनी नौयत की पहली कश्मीरी और कन्नड़ फिल्म हरमुख स्क्रीन की जा रही है। शाम 6 बजे से शुरू हुई ये फिल्म इस वक्त आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में जारी है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेहमान खसूसी, जबकि वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA हजरत बल सलमान सागर, महकमा इत्तलात के सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नीतीश राजौरा भी मौजूद हैं। मारूफ अदाकार और फिल्म प्रोड्यूसर डॉक्टर अय्याश आरिफ ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि 2 घंटे और 5 मिनट की ये फिल्म कश्मीर और कन्नड़ के बीच फन, सकाफत और जबानों में मेल जोल के तई एक खराज है। हरमुख कश्मीरी और कन्नड़ा जबानों में बनी पहली फीचर फिल्म है जो कश्मीर की गहरी सकाफती विरासत, पाईदार भाईचारे और मशहूर मेहमान नवाजी को खराज तहसीन पेश करती है। ये फिल्म कश्मीर की दिलकश खूबसूरती, रंगारंग रिवायात और लोगों के दरमियान हम आहंगी का भरपूर इजहार है। जदीद दौर के चैलेंजेस के पस मंजर में हरमुख कश्मीरी अवाम की साबित कदमी और अमन की ख्वाहिश को उजागर करती है। ये फिल्म भाईचारा, बकाए बाहमी और बाहमी एहतराम की इक़दार को अपनाने की दावत देती है। ये फिल्म 2 कदीम सकाफतों कश्मीर और कर्नाटक के संगम को पेश करती है और एक ऐसे मुश्तरका सिनेमा ज़बान में बात करती है जो तनव्वु में इत्तेहाद का पैगाम देती है। फ्लोरिडा, अमेरिका से आज भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला के साथ साथ हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के खलाबाजों को लेकर एक्शियम 4 मिशन को कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। ये क्रू कल दोपहर 4:30 बजे इंटरनेशनल खलाई स्टेशन पहुंच जाएगा। विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद भारत के कैप्टन शुक्ला खला में जाने वाले दूसरे भारतीय खलाबाज बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई मिशन के कामयाब लॉन्च पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खलाबाजों के नई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के दौरान माइक्रो ग्रेविटी से मुतल्लिक 7 तजुर्बात करेंगे। I say this with all the confidence in my command because the space reforms which were brought in the last few years not only enriched our resources but also gave tremendous confidence to our space experts, space scientists, and today India is no longer a follower. We are equal partners in our collaborations, and I think it's borne out by the simple fact that of the 4 astronauts in the crew that has gone up, Subhanshu Shukla is possibly the most important because not only that he's a pilot, he's also going to perform 7 crucial experiments. And living up to the Prime Minister's mantra of Atmanirbhar Bharat, all these 7 experiments have been designed within India by the Indian institutes. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुभांशु शुक्ला को मुबारकबाद पेश की है। अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने भारतीय खलाबाज के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। MLA पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रानी वादी में मुतअद्दिद आबपाशी नहरों के सूखने और कई वाटर सप्लाई स्कीमों के नाकारा हो जाने पर तशवीश का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सरकार और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वो इस संगीन मसले की तरफ फौरी तवज्जो देकर मुत्तलका महकमों में खाली पड़े इंजीनियरों और दीगर असामियों को तरजीही बुनियादों पर पुर करें। MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन ने मछली ब्लॉक के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेते हुए मुत्तलका महकमों के अफसरान को हिदायत दी है कि वो अवामी मसाइल का जल्द निपटारा यकीनी बनाएं। उन्होंने इलाके का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद अफसरों के साथ एक मीटिंग की। दरियासना MLA बांडीपोरा निज़ामुद्दीन भट्ट ने आज जिले के शेर कश्मीर स्टेडियम में ज़ेर अमल कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VK बिर्दी ने आज पहलगाम में नुनवन बुनियादी कैंप का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा जनूबी कश्मीर के DIG और SSP अनंतनाग भी थे। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए IGP ने कहा कि नुनवन कैंप से पवित्र गुफा तक यात्रियों की सलामती के लिए मुनासिब और माकूल इंतजामात किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने यात्रा का पूरा सिक्योरिटी इंतजामात करे हैं और पिछले साल की बनस्पत इस बार हमारे और मल्टी लेयर्ड और इन डेप्थ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है ताकि जो हम ये यात्रा है उसको सुरक्षित एवं सुगम यात्रियों के लिए बना सकें। कोई भी यात्रा और यहाँ के जो लोकल बाशिंदगान के बिना नहीं होती है, उन्हीं के ताउन और मदद से ये यात्राएं सफल होती हैं। इस दौरान पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शुमाली कश्मीर मकसूद जमानी शादीपोरा बांडीपोरा में कायम यात्रा के ट्रांजिट कैंप का दौरा करके वहां आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान यात्रा के तनाजुर में कुलगाम जिले में श्रीनगर जम्मू कौमी शहर के कई मकामात पर तैयारियों की एक कड़ी के तहत फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि मॉक ड्रिल्स में कुलगाम पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों ने हिस्सा लिया। मशकों का एहतमाम वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड, FCI मीर बाजार, अल स्टॉप वनपो, खुड़वनी और विसु क्रॉसिंग में किया गया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में कश्मीर यूनिवर्सिटी में मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर राशिद मकबूल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मंशियात वो जहर हैं जो आपके खून में उतरकर आपके जिस्म जान को ही तबाह नहीं करते बल्कि आपको अपने अजीजों और मुआशरे के लिए भी अजियत का सबब बना देते। ये मजा नहीं बल्कि ऐसी सजा है जो सेहत भी बिगाड़ती है और इज्जत भी, दर्द भी देती है और दाग भी। मंशियात की लत छोड़ो और जिंदगी से नाता जोड़ो। मुनशियात की लानत के खिलाफ अपनी कोशिशों को मजीद तेज करते हुए श्रीनगर पुलिस ने टाकनवारी करनाबल के परवेज अहमद भट्ट नामी एक स्मगलर की 1 करोड़ रुपये की मालियत की जायदाद को कुर्क किया है, जिसमें एक 2 मंजिला मकान और कुछ जमीन शामिल है। सोपोर पुलिस ने मलगूनीपोरा वतरगाम के रहने वाले मुश्ताक अहमद भट्ट नामी एक स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मुनशियात की कुछ मिकदार बरामद कर ली है। डिप्टी कमिश्नर शुपैया शिशिर गुप्ता की सदारत में जिला सतह की नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में मुनशियात पर काबू पाने के लिए किए जा रहे जरूरी इकदामात का जायजा लिया गया। इसी दौरान हंदवाड़ा के विलगाम इलाके में पुलिस की तरफ से मुनशियात के खिलाफ जानकारी पैदा करने की गरज से एक रैली निकाली गई। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की तरफ से 2025 के पासपोर्ट दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एक सिटीजन सर्विस एग्जीक्यूटिव को पासपोर्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को पासपोर्ट से मुतलिक वेरिफिकेशन का अमल मुनासिब तरीके पर अंजाम देने के सिले में इस अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि दूसरा अवार्ड अनंतनाग में काम करने वाले पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र के सिटीजन सर्विस एग्जीक्यूटिव को इनफरादी जुमरे में दिया गया है। दुनिया भर में खवातीन सफारतकारों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे आलमी सतह पर सफारती अमल में जामिया सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल रहा है। भारत में भी अब खवातीन सफारती ओहदों पर फाइज हो रही हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी ताउन के शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस बारे में इंडियन फॉरेन सर्विस की एक सीनियर खातून अफसर सोहदा रजवी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, क्योंकि डिप्लोमेसी एक ऐसा पेशा है जो पेचीदे मुद्दों को विश्व के स्तर पर संवाद के साथ और बातचीत से, कोलैबोरेशन से सुलझाने की कोशिश करता है। अगर ज्यादा महिलाएं इस पेशे में आएंगी, इस काम में आएंगी, इसका
सीधा सीधा असर आपको ग्लोबल डेवलपमेंट, पीस, सिक्योरिटी यानी कि विश्व में ज्यादा विकास, अमन और सुरक्षा देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने महिलाओं को मजबूत बनाया है, साथ ही साथ हमारे समाज में बहुत संघर्ष करना पड़ता है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। कभी कभार मुश्किलें आती हैं क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना हर वक्त आसान नहीं होता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में, फॉरेन सर्विस में बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे देश में, तो एक तरह से जब भी आप बोलते हैं उस लिहाजे से आप पूरे देश के लिए बोल रहे हैं, तो वो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। यही जिम्मेदारी शायद ताकत भी बन जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो मुहर्रमुल हराम के अय्याम मुतबरका के दौरान शिया आबादी वाले इलाकों में तमाम ज़रूरी इंतजाम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हज़रत मिर्ज़ा अकमलुद्दीन बदख्शी रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स के सिलसिले में भी ज़रूरी इंतजाम करने की अपील की है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस बात को बाइस इत्मीनान करार दिया है कि ज़ोहरान मामदानी जैसे नौजवान तालीम याफ्ता मुसलमान सियासी उफुक पर कामयाबियां हासिल करके हकीकी शमूलियाती मुस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मौसूफा ने कहा है कि न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बनने पर ज़ोहरान शाबाशी और मुबारकबादी का मुस्तहिक है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी की शदीद लहर जारी है। यूटी के जम्मू खत्ते में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। अलबत्ता कश्मीर वादी के कई हिस्सों में आज सुबह की मामूली बारिश के बाद दिन भर ज़बरदस्त नमी रही। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अगले चंद रोज़ की मौसमी सूरत हाल के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया कि मौसम में अगरचे थोड़ी सी नरमी आ सकती है, ताहम किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अभी गर्मियाँ काफी ज्यादा रही, खासकर यहाँ वैली में। जम्मू डिवीजन में मानसून काफी एक्टिव है पिछले 3-4 दिनों से। आज अच्छा स्पेल बारिशों का हुआ, खासकर अर्ली मॉर्निंग और हैवी बारिशें हुई। आज रात को फिर से जो है हैवी स्पेल्स के चांसेस हैं जम्मू डिवीजन के अंदर। यहाँ वैली में भी हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट बारिशों के चांसेस हैं। इंटेंस शावर्स भी जो है रह सकते हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और वैली के कुछ एक हिस्सों में भी। उसके कारण जो है फ्लैश फ्लड्स वगैरह जनरेट हो सकते हैं, लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स। आज मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री रहा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट मिनिमम टेम्परेचर है जून के महीने में। तो इससे पहले 1978 में डे टाइम में काफी ज्यादा गर्मी थी और ओवरनाइट क्लाउडीनेस के कारण जो है टेम्परेचर उतना ज्यादा फॉल नहीं हो पाया। कमिंग डेज में भी कोई हीट वेव के चांसेस नहीं है लगभग 3-4 जुलाई तक। अलबत्ता डे टाइम में मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रह सकता है। बाकी सुबह शाम बारिशें अमूमन रहने के चांसेस है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:21 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।